Yes, students, very good morning to all of you. So we were revising practical geometry. RHS rule of congruency I was telling you yesterday, and on the basis of which we will start with the last exercise. Let me once again tell you what is RHS rule of congruency. RHS rule, where R stands for right angle, H stands for hypotenuse, and this S stands for side. Now, one thing you have to keep in mind that this hypotenuse, this always lies in a right angle triangle. Hypotenuse हमेशा right angle triangle में होता है. कैसे? Let me tell you. मान लो हमारे पास एक right angle triangle है. This is 90 degree right angle, right? And always remember that hypotenuse is always the side opposite to right angle. तो right angle के opposite ये side है. This is hypotenuse. जिस पे right angle triangle fall कर रहा है, that is base. And this is perpendicular. You just have to remember that hypotenuse always lies opposite to 90 degree. Hypotenuse हमेशा 90 degree के opposite होगा, right? And moreover, hypotenuse is the longest side. किसी भी right angle triangle में जो hypotenuse है, that is the longest side. Hypotenuse is the longest side. सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज, ठीक है. ये आरएचएस रूल है जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा, वन हाइपोटेन्यूज इज गिवन एंड वन साइड इज गिवन विद द हेल्प ऑफ व्हिच यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल. एंड मोर ओवर ये जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड. हाइपोटेन्यूज विल बी द लॉन्गेस्ट साइड. सबसे लंबी साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है. चलिए, on the basis of this description, let us start with the help of RHS rule. Let us start with the 10.5 question number first. Question number first. Construct a right angle triangle PQR. Construct a right angle triangle PQR in which angle Q is equal to 90 degree. Angle Q is equal to 90 degree. QR is equal to 8 centimeter. QR is equal to 8 centimeter. And PR is equal to 10 centimeter. PR is equal to 10 centimeter. Construct a right angle triangle PQR in which angle Q is equal to 90 degree, QR is equal to 8 centimeter, and PR is equal to 10 centimeter. Let us make the figure firstly roughly. रफ स्केच बनाएं इसका. PQR is a right angle triangle with right angle at Q. So naturally, it will be like this.
क्यू पे राइट एंगल है तो क्यू का प्लेस फिक्स हो गया। पी एंड आर को यू कैन टेक इट लाइक जो भी साइड आपको गिवन है क्यू आर। और एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे पी क्यू मत लेना, पी को यहाँ नहीं लेना, इसलिए नहीं लेना बिकॉज जो हमें साइड गिवन है वो क्यू आर है, राइट। सो हम आर वहां ले, जब भी हमने राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है 90 डिग्री को हमने फिक्स करके जो हमारी बेस साइड होगी उसको ऐसे एंगल क्यू हम पी क्यू के ऊपर नहीं बिठाएंगे क्योंकि पी क्यू इज नॉट गिवन। जो साइड हमें गिवन है एंगल क्यू को उस साइड के ऊपर स्टे करना है। तो वी आर गिवन द साइड क्यू आर, तो एंगल क्यू विल स्टे ऑन क्यू आर, राइट। चलिए लेट अस कंस्ट्रक्ट इट। First of all, you have to draw QR is equal to 8 centimeter. Here sketch. Draw QR is equal to 8 centimeter. QR 8 centimeter. At Q, you have to construct 90 degree. Q पे आपने 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। हाँ जी कार्तिक, एनी डाउट? यस कार्तिक। यस मैम। मैम जो आपने पीआर वाली लाइन बनाई है मैम, उस पे आपने 9 लिखा है कि 10 लिखा है मैम? वो 10 सेंटीमीटर नहीं? 10। ठीक है। So at Q we have to construct 90 degree. Now so many times we have constructed 90 degree. You should know how to construct it. Let us once again draw it, keeping the needle at the point Q. First arc is like this. Right? Then 60, 120, then it is 90. This is 90 degree. We will construct 90 degree. Right? Now what is given to us? जो जो given था हमने यूज, हम टिक करते जाते होते हैं साथ साथ। टिक करो गिवंस को। एक तो आपको गिवन था एंगल Q 90 डिग्री that you have used. Second given was QR is equal to 8 centimeter that you have used. What is left to be used? PR is equal to 10. तो आप open the compass of 10 centimeter. यहाँ कहीं आपका P होगा इस जगह पे। Keeping the needle at the point Q, mark an arc of 10 centimeter here. This will be P. Join P to R. $10 centimeter. Yes, Korish. यस मैम। मैम मेरा थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैम अभी तक आपने यही सब करवाया है ना? हाँ अभी यही हुआ। ओके मैम। यस साव्या। साव्या। यस मैम। मैम जो आपने इधर आर लिया है, आर से मैम वो हम क्यू से नहीं लेंगे? कौन सी आर्क? मैम जो पी वाली आर्क है 10 सेंटीमीटर वाली। आप क्या कह रहे हो, कहाँ से लेनी चाहिए? मैम क्यू से।
बच्चे वैल्यू किसकी 10 सेंटीमीटर है? पी आर की। उनमें से कौन सा पॉइंट आपको गिवन है? पी, तो आप पी से लोगे। सॉरी, उनमें पी आर में से कौन सा पॉइंट आपके पास है? आर है, तो आप आर से ही लोगे। ओके पी क्यू नहीं गिवन, हमें पी आर गिवन है। अगर पी क्यू गिवन होता फिर क्यू से लेते। ओके, यस मैम। यस हरमीत। यस मैम। मैम जो मैम अगर हम 10 सेंटीमीटर खोलते हैं मैम, तो अगर एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए तो गलती तो नहीं होगा? एक पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए तो निगलेक्ट हो जाता है, 3-4 पॉइंट नहीं होने चाहिए। ओके एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम जैसे जो नीचे इसकी क्यूआर वाली लाइन होती है मैम, जैसे उस पे हम 8 सेंटीमीटर की लिखते हैं, तो हमने एग्जैक्ट पूरी 8 सेंटीमीटर की फेयर स्केच में बनानी होती है स्केल से? उतनी जितनी है उतनी बनाएंगे। ओके मैम, मेरे को बस यस देवांग। मैम सारे वाले डाउट पूछे। अच्छा, चलो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. Construct a right angle triangle whose hypotenuse is 6 and one of the leg means कोई भी hypotenuse को छोड़ के आप कोई भी साइड कह दो, ठीक है। one of the leg means उसकी leg बोल देते हैं उसको, कोई भी साइड उसकी hypotenuse को छोड़ के। one of the legs is 4 centimeter. Let us make the rough sketch first. नेमिंग भी हमें खुद करनी पड़ेगी इस बार। दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज 6, वन ऑफ द साइड इज 4। चाहे इसको 4 ले लो चाहे इसको, हम इसको ले लेते हैं क्योंकि हमारा एंगल बी जहां पे बैठा है हमें वो साइड चाहिए होती है। wherever our 90 degree is sitting, that side is needed. हाइपोटेन्यूज ऑपोजिट टू 90, वन साइड कोई भी ले सकते थे, हम वो लेंगे जहां पे हमारा 90 डिग्री बैठा हुआ है। सो आई एम टेकिंग BC टू बी 4, राइट। चलिए लेट अस कंस्ट्रक्ट। BC is equal to 4, BC is equal to 4, angle B is 90 degree. Make 90 degree at B. So many times you have made it now, you should know it very well. 90 at B. Now the rest of the side AC is given to be 6. तो आप B पे रख के नहीं आंख लगाओगे, C पे रख के लगाओगे, because AC is 6. कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि B पे रख के इधर की तरफ R पे लगा दो 6 की। नो, इसीलिए मैं पहले ही साइड्स को लिख लेती होती हूँ रफ स्केच में, ताकि मुझे आइडिया रहे बाद में। So you will put the needle at the point C, cut an arc of 6 centimeter along this, mark it to be A. Join it.
third question is construct an isosceles right angle triangle with angle ACB is equal to 90 degree and AC is equal to 6 centimeter. Isosceles right angle triangle. We are given I want to tell that I just from the book कि वो कैसे आपको बताया जाए. कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी. ये अगर क्वेश्चन आता है कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होएगी, ध्यान से देखना. राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी इन विच एंगल एसीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री and one of the equal side is 6 सेंटीमीटर. अब एक चीज का ध्यान दो, ट्राइंगल एबीसी है, सबको पता है, ट्राइंगल का नाम दिया हुआ है, और उस पे कौन सा एंगल 90 डिग्री है? एंगल सी. चलो पहले हम एंगल सी पे 90 डिग्री रख के इसको देखते जरा क्या. Now the thing is isosceles triangle, and we know that in isosceles triangle two sides are equal. This is 6 centimeter. ये 6 है. जब तक आपको बोलना नहीं गया कि ये हाइपोटेन्यूज है, आपने इसको हाइपोटेन्यूज नहीं बोलना. हाइपोटेन्यूज उसी को बोलोगे अगर इट इज गिवन. अगर ये दिया होता कि दिस इज हाइपोटेन्यूज, देन आई विल टेक 6 टू बी हाइपोटेन्यूज. नहीं दिया हुआ है ना, तो आप दो इक्वल साइड 6 है ना, इसको भी 6 ले लो, इसको भी. ये पेपर में आपको कंफ्यूजन हो जानी है इसमें. आई एम टेलिंग यू, if this question is in exam, you will many students will do it wrongly if they are not keeping this thing in mind. Hypotenuse is not given to us, तो हम hypotenuse पे 6 लिख ही नहीं सकते. दो इक्वल साइड हैं, each 6, तो बेस पे 6 लिखना पड़ेगा एंड परपेंडिकुलर पे 6 लिखना पड़ेगा. हाइपोटेन्यूज पे 6 इसलिए नहीं लिख सकते बिकॉज इट इज नॉट मेंशन्ड that it is hypotenuse. Is it okay? Clear है? चलिए let us start. This is a dangerous step I should say. कि ये जो coming with snake, dangerous step जहाँ होता है ना, वहाँ snake के साथ आता है. Snake का danger होता है वहाँ पे. देखते हैं आप उस danger को पार कर पाते हो कि नहीं, या फिर snake ऐसे करता है. कर पाओगे पार के स्नेक को? अपना काम, आप अपना काम अच्छे से करोगे कि स्नेक को अपना काम अच्छे से करने दोगे? आप अपना अच्छे से करना, स्नेक को मत करने देना अपना काम. चलिए बीसी 6 सेंटीमीटर. At B we have to construct angle of 90 degree. B पे 90 डिग्री. डिग्री तो बना के हम पूरी तरह से हो चुके हैं. बहुत बार 90 डिग्री बना चुके हो, so many times. So many times you have drawn 90 degree. ठीक है, so now see, अब आपके पास दूसरी साइड, सॉरी यहाँ पे सी आना है, मैंने गलत लिख दिया. नहीं, सी पे राइट एंगल है. ठीक है, सी इज राइट एंगल. तो हमारी ये वाली साइड भी 6 है. हमारे अकॉर्डिंगली आइसोस्सेलेस की दो साइड्स इक्वल होती हैं, वी नो. तो इफ दिस इज 6, दिस इज आल्सो भी 6 सेंटीमीटर. सी पे रखते, मार्क दिस टू बी ए. Join AB.
जहां पे 90 डिग्री दिया हुआ है उसी को 90 डिग्री मार्क करना है, किसी और पे 90 डिग्री मार्क करोगे तो इट विल बी रॉन्ग. This is 6, this is also 6, and accordingly you have to mention. Yes, Korish, what do you want to ask? यस मैम. मैम इस क्वेश्चन के बाद अब एक टाइम एक्सरसाइज 10.1 का थर्ड क्वेश्चन करवा सकते हो? हाँ, बस ये खत्म हो गया चैप्टर, उसके बाद वही करवाने लगे. ओके मैम. So this is all about with practical geometry. We have learned with the triple S rule how to construct a triangle, with SAS rule how to construct a triangle, with ASA rule how to construct a triangle, and in the last we did RHS rule से triangle को कैसे construct करते हैं, right? And we also learned how to draw a line parallel to the given line from a point outside the line. 10.1 का थर्ड क्वेश्चन बार बार बच्चे कह रहे हैं, चलो वही करते हैं अब क्लास में. Third question, exercise 10.3. 1. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी. मैम जो आपने बी से लेकर ए के ऊपर मैम वो आर के जो आपने ए के पॉइंट पे मारी हुई है मैम वो आपने कौन से पॉइंट से लेके ली है? बेटे आप खुद सोचो, ये हमारा रफ स्केच था, हाइपोटेन्यूज हमें गिवन नहीं था, दो साइड्स इक्वल हैं, ये 6 ये 6. अगर ये साइड गिवन है और मेरे पास ये वाला पॉइंट है तो मैं इसी पे रख के लगाऊंगी. ओके मैम. जो साइड गिवन होती है उसमें से जो पॉइंट आपके पास हो उसी पॉइंट पे रख के लगाते हैं, ठीक है, याद रखना है. 10.1 का थर्ड क्वेश्चन देखो. What he says, let line A, let L be a line and P be a point not on it. To P, draw a line M parallel to L. सबसे पहले इतना क्वेश्चन तो हमें आता ही है कि हमें L लाइन के पैरेलल P पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है. चलिए लेट अस स्टार्ट. L के पैरेलल हमें M ड्रॉ करना है. K के पॉइंट P नॉट ऑन L, और हमें पहले सबसे पहले ट्रांसवर्सल बनानी होती है. ट्रांसवर्सल के लिए हमें एक पॉइंट जो है वो L पे लेना पड़ेगा. आई एम टेकिंग दिस Q. Q एक्चुअली इसने मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, आप ऐसे ले लो. सबसे पहले हमें P से निकलती हुई L के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो आई शुड हैव ट्रांसवर्सल लाइन. आई ड्रॉ ट्रांसवर्सल. Now I told you that you need to construct two alternate interior angles of the same measurement. P पे भी यही आर्क लगेगा ऐसा ही, ठीक है. अब एंगल देखो, alternate interior angle should be equal, so I am taking this angle. This comes out to be equal angle to this. This angle and this angle, very good. इसको मेजर किया, यहां से कट कर, ठीक है. अब यहां से एक लाइन P से निकलती हुई इसका नाम उसने क्या बोला M. Name it as M. M is a line which is parallel to L passing through the point P. आगे इतना क्वेश्चन तो हमें पहले ही आता था, हमने पहले किया हुआ है. आगे क्या है? He says join P to any point Q on L. Choose a point any
other point R on M through R, draw a line parallel to PQ. कहता इसमें कोई पॉइंट Q चूज करो, मैंने ये कर लिया एंड R M पे कोई पॉइंट R लो, मैंने ये ले लिया. Choose a point Q on L and take a point R on M. ठीक है. Now what he says, through R draw a line parallel to PQ meeting L at S. अब हमें R से निकलती हुई, अच्छा S पॉइंट भी पहले दिया हुआ है, इसको आप M बोल दो. अब हमें R से निकलती हुई किसके, एक मिनट, now join P to any point Q on L. Q पॉइंट हमें लेना है, एक मिनट, जस्ट मिनट. पहले हमने P से ड्रॉ की पैरेलल लाइन. नाउ ज्वाइन P टू एनी पॉइंट Q ऑन L. इस P को पॉइंट Q के साथ ज्वाइन करो. एनी पॉइंट Q लिया L पे, उसके साथ ज्वाइन. टेक ए पॉइंट Q ऑन L, ज्वाइन इट विद P. देन चूज एनी पॉइंट R ऑन M. R लिया M पे और इस R से PQ के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है. सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ की पैरेलल, इसका काम खत्म हुआ. अब हमने एक पॉइंट Q लिया, इस पे P और Q को ज्वाइन कर दिया. नाउ वी हैव टू टेक ए पॉइंट R on M that I am taking. Now we have to draw a line parallel to PQ passing through R. आप सारा क्वेश्चन भूल दो, मैं रब करने लगी हूँ. ये हमें इसके पैरेलल R से लाइन ड्रॉ करनी है. तो हम क्या करते होते थे, R को PQ पे किसी पॉइंट के साथ ज्वाइन करते थे पहले, तो वो पहले ज्वाइन हुआ हुआ. ये ट्रांसवर्सल पहले ही बनी हुई है. दिस इज ट्रांसवर्सल ऑलरेडी फॉर्म्ड. एम आई क्लियर? अब हमने दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर करने हैं. एक एंगल यहाँ पे और एक एंगल यहाँ पे होगा, ऐसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट? चलिए लेट अस मेक इट. P पे मैंने आगे वाला एंगल लिया हुआ है, पहले मैं इस पे आर्क लगाऊंगा. This is the angle, alternate interior angle. मैंने सेम एंगल कट कर दिया. एक R से प्रोटेक्टर का साइन बनाया और ये जो एंगल है इसको अल्टर करने के लिए सेम एंगल यहाँ पे कटते हैं. नाउ R से निकलती हुई लाइन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के साथ इसको ज्वाइन करते हैं. इट इज मीटिंग इट एट. हमें एक टाइम आप आर वाला दोबारा एक्सप्लेन कर दो कि आपने कैसे वो प्रोटेक्टर का साइन बनाया था. R से PQ के पैरेलल ड्रॉ करनी है ना, तो R को P से ज्वाइन करना था, पहले ही ज्वाइन हो गया. ठीक है. यस मैम. ये एंगल जितना मुझे यहाँ पे बनाना है ताकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ जाए. ये ट्रांसवर्सल है, दिस इज ट्रांसवर्सल. ठीक है. तो मैंने क्या किया, पहले R पे प्रोटेक्टर का साइन बनाया और यहाँ पे सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कट कर दिया. ठीक है गौरिश? यस मैम. नाउ यू सी दैट दिस PS. मैम हमने ना एस से पहले भी लिया था मैम. इसने कौन सा पॉइंट बोला? S. बेटे मैंने चेंज कर दिया था, मैंने M बोल दिया था इसको. So you can see RS is parallel to PQ. Which shape of figure you are getting? It is a parallelogram because this is parallel to this and this is parallel to this. We get a parallelogram. मैंने ऐसे वो आया था, उसकी जगह हम एन ले सकते हैं. बेटे जो जो पॉइंट्स उसने मेंशन किए हैं उसी हिसाब से हमें लेने पड़ेंगे. ठीक है अमित? ओके. It's all about this.